Let me teach you my egg-free donut recipe today. All of you have been waiting since so long to learn this. So what are you waiting for? Let's get started. Let's start by taking lukewarm milk in a bowl and then adding sugar. Sugar basically acts as the food for yeast, which will help in yeast activation. Now we are going to add in the yeast. Give it a stir and keep it aside for activation. Ideal is to cover it with a cling wrap and keep it in a warm place for 5 to 7 minutes. Meanwhile, we'll start taking all the dry ingredients. We'll start by taking flour, add some salt to it, give it a quick mix, and then we'll keep it aside. Meanwhile, you will check that the yeast has been activated. You can already see that this has started to activate. Now please understand, if the yeast has not bloomed, which means it will not have any froth. तो ये देख के आप चेक कर सकते हैं, अगर आपकी ईस्ट में फ्रॉथ आ गए हैं विच मीन्स ईस्ट एक्टिवेट हो गया है. अगर फ्रॉथ नहीं आई है वो मल्टीपल रीजंस की वजह से हो सकता है कि आपकी ईस्ट खराब हो गई है, या फिर आपने जो इसमें मिल्क लिया है वो ज्यादा वार्म थी. आप ल्यूक वार्म दूध लोगे, गरम गरम, बहुत ज्यादा नहीं, अदरवाइज ईस्ट आपकी एक्टिवेट नहीं होती. एंड देन यू विल एड द रेस्ट ऑफ द शुगर, गिव इट अ क्विक मिक्स. Now we are going to pour in the yeast mixture in it and mix it well. Please make sure to add the butter in batches and start kneading it again. Now we will again add in a little more butter and knead it. It should be softened butter. And I'm using unsalted butter because we have added salt in the dry ingredients already. Now at this stage, we'll transfer it to a clean counter. We'll clean up the counter, come back onto the counter, and then we'll start kneading it. The idea is to have it on the counter and do a stretch and fold. इसको आपको stretch and fold करते रहना है. See, already the dough starts coming together, but you need more kneading. Tuck in all the crease to one side and make a round ball. Drizzle a little olive oil and brush it generously onto the sides of the wall. And keep the dough in the bowl with the crease side down, and also you have to cling wrap it. Cling wrap करके airtight करके इसको आपको रखना है. You have to wait until the dough has risen to triple in size. So this is risen really beautifully. Once the rise is done, wow, look at the rise. डो बहुत अच्छे से राइज होनी चाहिए आपकी. मेक श्योर, एंड देन यू आर गोइंग टू पंच इट लाइटली जस्ट टू रिलीज द एयर. दैट्स द एक्स्ट्रा एयर दैट यू डोंट वांट. ओके, and now first thing is to divide it into different parts so that you can start making into balls. So you're going to transfer it on the counter और थोड़ी हल्के हाथों से नीडिंग करेंगे, फिर से बहुत ज़्यादा नहीं. सारे क्रीज को एक साइड, एंड देन विल स्टार्ट रोलिंग इट. थोड़ा सा फ्लावर डस्ट कर सकते हैं आप, एंड देन स्टार्ट रोलिंग इट. डोंट रोल इट टू थिन. I have these cutters. अगर आपके पास प्लेन कटर है आप वो यूज कर सकते हैं. That's why I'm using the other side of the cutter. Now I'm going to transfer it onto the trays. पहले आप इसको ट्रे पे ट्रांसफर कर लीजिए. आपको जितने बनाने हैं. Now the edges have come out. आप उनको इकट्ठा करके फिर से रोल आउट कर सकते हैं and then repeat the process. थोड़ा सा दूर दूर रखेंगे. टेक एनी राउंड कटर दैट यू हैव. आई एम टेकिंग अ फैट नोजल. जो भी आपके पास राउंड कटर है उसके साथ आप ये सेंटर निकाल सकते हैं. थोड़ा सा मैदे के साथ डस्ट कर लोगे तो इजी होगा निकालना.
से भी कवर करके आप फिर से हाफ एन आवर के लिए रख दो, because it will proof, it will increase in volume and then you will fry it. See, after half an hour, this is how it looks, beautiful. इतना राइज हुआ है, अच्छे से देखो, हाइट अच्छी दिख रही है. नाउ इट्स टाइम टू फ्राई. पेपर के साथ ही डालो आप, वो इजी रहेगा आपको. इफ़ यू हैव सीन माई बॉम्बोलोनी रेसिपी, एग फ्री बॉम्बोलोनी रेसिपी जो मैंने आपको सिखाई थी, उसमें मैंने डिटेल में बताया है कि फ्राई कैसे करना चाहिए, टेम्परेचर क्या होना चाहिए, पेपर के साथ क्यों लगाते हैं. अगर आपने अभी तक नहीं देखा है और नहीं बनाया है, उस रेसिपी को जाके देखिए और सीखिए और बनाइए. यू कैन एक्चुअली फ्राई 2-3 टुगेदर, बट सिखाने के लिए मैं एक एक फ्राई कर रही हूँ ताकि आपको दिखे अच्छे से. स्टार्टिंग में आप कोशिश करना है 1-2 ही एक साथ फ्राई करो, सो दैट यू हैव स्पेस टू फ्लिप. Allow it to fry from one side. Once it's fried and turns into golden brown, only then flip to the other side. Now the donuts are ready. अब डोनट रेडी होने के बाद, फ्राई करने के बाद आप उसको अच्छे से ठंडा करेंगे. ठंडा होने के बाद इसको हम ग्लेज करते हैं. ना व्हाट इज ग्लेजिंग? ग्लेजिंग के लिए आप मल्टीपल ऑप्शंस चूज कर सकते हैं. आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ 2 तरीके की डेकोरेशन और ग्लेजिंग. एक हमारा चॉकलेट गनाश के साथ, डार्क चॉकलेट गनाश के साथ, और दूसरा हम करेंगे कलर्ड गनाश के साथ. तो डार्क चॉकलेट गनाश के लिए आप डार्क कंपाउंड ले सकते हैं, कुवर्चर चॉकलेट ले सकते हैं, मिल्क चॉकलेट ले सकते हैं एंड उसकी गनाश बना सकते हैं. अगर आपको गनाश बनाना नहीं आता तो आप हमारे चॉकलेट केक के सारे जो लाइव सीरीज हैं उसको देख सकते हैं. वहाँ पे हमने डिटेल में बताया है हाउ यू कैन मेक चॉकलेट गनाश. एंड ये है आपकी कलर्ड गनाश. कलर्ड गनाश आप कैसे बना सकते हो? व्हाइट चॉकलेट गनाश बना के उसमें चॉइस ऑफ कलर आप इसमें डाल सकते हैं and then you can stir it to get this beautiful color. I have used pink color in this. Alright. और एक जो आपको सेटअप चाहिए वो ऐसे racks चाहिए, because once you glaze the donuts, you're going to place them on the rack ताकि जो भी एक्स्ट्रा आपकी ग्लेजिंग हो, वो ड्रिप हो, वो नीचे चले जाए ट्रे पे. And once it cools down, then you can decorate it as per desire. सबसे पहला डोनट जो है वो मैं डार्क चॉकलेट में डिप करूंगी. अच्छे से जेनरसली डिप करो. Give it a twist. एक्स्ट्रा निकाल देंगे और उसे देखो, लुक्स ब्यूटिफुल, ब्यूटिफुल. इसे रखेंगे. नाउ द नेक्स्ट वन आई एम गोइंग टू डिप इट इन द कलर्ड गनाश. क्योंकि हम एसी में काम कर रहे हैं तो आपकी गनाश के ऊपर एक फिल्म आ सकती है. डोंट वरी, जस्ट स्टर इट बिफोर यू स्टार्ट डिपिंग योर डोनट्स इनटू इट. नाउ इट्स रेडी फॉर द डिप. डिप करें, ऐसे रखेंगे थोड़ा सा सर्कुलर मोशन में, halfway through. Don't dip the entire donut into it. और आप इसे निकाल के रैक पे. So I have some rod sprinkles. तो मैं rod sprinkles को अपने हिसाब से डिजाइन करके लगा सकती हूँ. Some stars here and there. And ये आपको तब करना है जब आपका गनाश अभी भी सेट नहीं हुआ है. And then some sprinkles on top. मैं एक साइड स्प्रिंकल लगा रही हूँ, दूसरे साइड मैं कुछ और प्लान कर रही हूँ. आई विल शो इट टू यू. नाउ दिस पार्ट इज कम्प्लीटली योर चॉइस. आप अपने डोनट्स को कैसा कलर देना चाहते हैं, कैसे डेकोरेट करना चाहते हैं. Feel free and have fun with this beautiful donuts. I can't wait to see you guys make it. Do give these egg-free donuts a try and let me know how you like them. You can send them for your orders to your relatives. Enjoy making this. Don't forget to subscribe to our YouTube channel. See you again. Bye.